a warm welcome to all the participants. आज हमारे जो गेस्ट है, he is a COT, a corporate club. ही नहीं, I would say the couple, because एक गेस्ट नहीं है, हमारे पास दो गेस्ट है, जोड़ी है, जो मुंबई, नवी मुंबई की जोड़ी नंबर 1 है. So our guest of honor basically is a COT, a corporate club in his spouse name, a Galaxy Club member in his name, the Jodi number 1 from Navi Mumbai, a couple who has designed their own business model. The day I got into interaction with this couple, first thing that I told Mr. Prasad was कि I as a development officer and SBA जो मैं aspire करता हूँ कि मेरा agent किस तरीके का होना चाहिए, वो सब चीजें मैं आप में देख रहा हूँ, and that was something that inspired me a lot. And let me promise you, this will be a very good learning session. So, welcome both, Prasad sir and Neha ma'am. And thank you, sir. Thank you. Yes, welcome. As we start up the question answers, the first question that is common, which we ask to all our participants or all our guests, can you tell us about your life journey, specifically in short in LIC? Yeah. Before start anything, I would like to thank our gurus, Mr. Bipin Raje and Mrs. Anjali Raje, who had given us a birth on this LIC family. Their constant support, guidance and motivation keeps us charged to do more and more achievement. And most importantly, all our clients, without their contribution, we could not have achieved this status. So also I would like to thank all our external mentors like Mr. Kazim Raja, Ranjan Nagarkate, Sanjay Gurnani and Gopinath sir. We have learned a lot of many things from them. So once again, myself, Prasad Doifode, I am an MBA in Insurance and Financial Planning. This is my second MBA. My first MBA was in materials management. I work for many top brands, and I work for almost around 17 to 18 years. After my graduation, I had my first job with Asian Paints at Kolhapur, and I worked there for almost 3-4 years. Then after that, I have been transferred to Mumbai. When I came to Mumbai, तो मतलब कोल्हापुर में जब था तभी उस टाइम पे जितना जो सैलरी मिल रहा था उसके अंदर I was very much comfortable to spend to do my standard of life. When I came back to Mumbai, Mumbai is my main town, born and brought up in Mumbai. So when I came back to Mumbai, I find it out कि this salary is very limited for me because यहाँ पे traveling में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बाकी रहने सहने खाने में काफ़ी पैसा जा रहा है. So I could not save anything. So one fine day I decided कि I should do some part-time work. तो part-time work करना तो क्या करना. तो एक दिन एक मुझे मेल आ गया कि there is a good opportunity for this private life insurance company, and I was not in 2001. That time this privatization has happened. So I went there for this interview to attend that seminar. And that session was one of the leading private life insurance company, and I liked the seminar, their culture and everything. So immediately I said, yes, I want to do this. I want to join this company. I worked there for almost 6 to 7 years, and I achieved lot many awards, rewards over there. But I could not achieve any MDIT over there because I was not aware that MDIT करके भी ऐसा कुछ concept होता है. But while doing the private life insurance agency, I had faced many objections. The first objection was the LIC. तो सभी client मुझे यही पूछते थे कि why not you give us the LIC policy? We don't want this private life insurance company. Private life का policy नहीं चाहिए. We want only LIC. Then फिर मैं उनको समझाता था, अरे LIC इतना लंबा रहता है, 15-20 साल का प्रीमियम भरना पड़ता है. This is a good one. इस कंपनी में से आपको 3 साल ही प्रीमियम भरना है. I somehow I could convince them. तो लोगों को भी अच्छा लगता है, सिर्फ 3 साल पैसा भरना है, and after 3 years we can get the money, we can get the maturity. ऐसे करके मैंने लोगों को बेचना चालू कर दिया. But हाँ, before that, when I took this agency, तो पहले 3-4 months was very critical for me because I could not sell a single policy. तो I thought कि क्यों नहीं हो रहा है करके. तो I went to my development officer. मैंने उनको सब कुछ बताया कि ऐसा मैंने लोगों को अप्रोच कर रहा है. But still I could not close any policy. Then she had told me कि अरे तूने ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए, ऐसा करने से ये हो जाएगा करके. Then I said ठीक है.
So again, 1 or 2 months I tried it, but I could not succeed. And finally, I jumped into the some of my friends. तो उनको मैंने बोला कि दोस्तों अभी मुझे ये 6 महीना हो गया इस प्रोफेशन में, but I could not sell a single policy. So you should buy one policy from me. तो ऐसे करके मेरे दोस्तों ने मेरे से पॉलिसी लेना चालू किया. So that year went smoothly. I could have sold almost 6 to 7 policies, and second year onwards I could sell a good amount of policies. But somehow मतलब each and every call में I was getting the same objection कि मुझे LIC पॉलिसी चाहिए. एंड कुछ लोगों ने तो मेरे से ना प्राइवेट की पॉलिसी ली, ना कुछ पॉलिसी नहीं ली. तो आई लूज दोज बिजनेस, आई लूज दोज कस्टमर्स. तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई कांट वी टेक अनदर पॉलिसी ऑन नियाज नेम, मतलब अनदर इंश्योरेंस एजेंसी, इट मींस LIC एजेंसी ऑन नियाज नेम, सो दैट वी कुड नॉट लूज अ सिंगल बिजनेस. मतलब वो भी पॉलिसी अपने पास ही आ जाएगी, मतलब घर के अंदर ही दोनों भी पॉलिसी आएगी. तो अकॉर्डिंगली वी अप्लाइड फॉर दिस एजेंसी. एंड हमारा लक इतना अच्छा था कि वी कुड गेट दिस जॉइंट मेंटर. हमें कपल जो मिला है हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये हमको ये मिल गया. अभी उनको ज्वाइन करने में भी एक स्टोरी है कि मेरे जो मामा मामी है तो देवर ऑल्सो LIC एजेंट. तो मुझे जब एजेंसी लेना तो वी अप्रोच देम कि मुझे LIC की एजेंसी लेनी है, तो किससे लेना चाहिए करके, हु इज द डेवलपमेंट ऑफिसर. तो उन्होंने डायरेक्टली लेकर आए, विपिन सर के पास लेकर आए एंड सेड इनके पास अपनी एजेंसी, यू शुड आल्सो टेक द एजेंसी फ्रॉम देम ओनली. ठीक है चलिए. Then we took the agency, मतलब she has given the exam and all this thing. We took the agency. But मेरा हमेशा अप्रोच ये होता था, मतलब जो प्राइवेट कंपनी में वहाँ पे जो काम करता, तो दैट कंपनी इज अ ग्रेट कंपनी. LIC बोले कुछ भी नहीं, ऐसा मेरा उस टाइम पे मेरा एटीट्यूड होता, बिकॉज आई वाज गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम दैट कंपनी. बट स्लोली सर ने भी मुझे बराबर ट्रेनिंग दिया एंड बराबर हैंडल किया. एंड फाइनली आई रियलाइज कि LIC इज अ ग्रेट कंपनी एंड देयर प्रोडक्ट्स, देयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, एवरीथिंग. एंड फिर मैंने भी कंपैरिजन करना चालू किया. व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन दैट कंपनी एंड व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन LIC, what are the positive and negatives in both the agencies. Then I realized that LIC is the best organization and we should stick to the LIC. And after that we have resigned from that company and we continued with the LIC agency. But उस टाइम पे कैसा, I was working with this corporate life. That time I was working with Asian Paints and उसके बाद I worked for L'Oreal. So I could not take an agency on my name. That's why I taken it on Nia's name. मुझे आज भी याद है कि when we went for this my first call, तो मैं फर्स्ट कॉल के लिए लेकर गया, जॉइंट कॉल में लेके गया, मैं सर को लेकर गया. मतलब मुझे तो कुछ पता नहीं LIC के बारे में. आई कैन हैंडल दिस, मेरा प्राइवेट का जो मुझे पता है कि 3 साल भरना है, 5 साल भरना है, एंड यू विल गेट अ मैच्योरिटी एंड ऑल दिस थिंग. तो उसके लिए मैं कंफर्टेबल था. बट इन LIC यू विल हैव टू पे फॉर 15 years, 20 years, 25 years. आई वाज नॉट कंफर्टेबल. तो आई सेड कि सर यू विल हैव टू कम विद मी. तो सर के साथ मैं जॉइंट कॉल में गया. मेरे ऑफिस की जो कलीग थी उसके घर पे गया. बट ऑफिस के वो कलीग को मैंने पहले बोला था कि आई वांट टू कम टू योर प्लेस रिगार्डिंग दिस LIC करके. देन शी सेड ओके नो प्रॉब्लम. वो बोली कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा. तो मेरा हमेशा, मैं जो प्राइवेट में भरता था वो दैट वाज 18 to 20,000 रुपीज, उतना ही मेरा मैक्सिमम प्रीमियम होता था. मिनिमम भी उतना था, मेरा मैक्सिमम भी उतना ही था. तो देन शी सेड कि ठीक है, मतलब 20-25 हज़ार तो वी कैन अफोर्ड, यू कम टू माय प्लेस. ठीक है. फिर हम लोग उनके घर पे वगैरह गए एंड सर ने प्रेजेंटेशन बताना चालू किया. मैं सिर्फ साइड में देखे, मैं सिर्फ देख रहा था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट कॉल, आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग. एंड उस टाइम पे रिटायर एंड एंजॉय वाज द फेमस कॉन्सेप्ट. तो सर स्टार्टेड द प्रेजेंटेशन ऑल दिस थिंग एंड सर ने जो पहले प्रीमियम बताया दैट वाज अ प्रीमियम ऑफ 1,50,000 रुपीज. मैं सर को बोला रहे सर उनका इतना, मतलब उतना पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उसको जो बताया, कमिट किया था, आई वाज कमिटेड फॉर ओनली 25,000 रुपीज. एंड सर यू आर शोइंग देम द प्रीमियम ऑफ 1,50,000 रुपीज. तो सर बोला कुछ नहीं होता, डर मत, आई एम देयर. तो क्लाइंट को प्लान प्रेजेंट सब कुछ अच्छा लगा. बट फाइनली इस सेड कि अरे प्रीमियम बहुत ज्यादा है करके, वी कुड नॉट अफोर्ड दैट मच. तो सर बोले ठीक है, अपन थोड़ा सा, फिर सर ने थोड़ा सा निगोशिएट किया एंड बट वी स्टिल कंटिन्यू निगोशिएटेड विद द 1,30,000 रुपीज का प्रीमियम. एंड 1,30,000 प्रीमियम इन द फर्स्ट कॉल, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी. मतलब मैं तो एकदम शॉक, इतना बड़ा प्रीमियम आ सकता है करके. मैं 6 साल में भी मतलब 20-25 हज़ार के ऊपर कभी गया नहीं था. एंड तो बाद में सब हो गया उसका. देन ही आस्क्ड वन क्वेश्चन
कि इसमें रिटर्न कितना आएगा, व्हाट इज द ROI, कितना पड़ेगा, IRR कितना आएगा. तो सर इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड 6 to 7%. तो बोले बस 6 to 7%. सर सेड यस 6 to 7% ही आएगा करके, बट दैट टू गारंटेड. Then he said okay no problem, I like this presentation, we'll go ahead. तो हम लोग वहाँ से निकल गए, चेक वगैरह निकले, डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोग बाहर आ गए. तो बाहर आ गए तो बोले चलो अभी सेलिब्रेशन करना है, बिकॉज दैट वाज द संडे आफ्टरनून. तो बोले चलो सेलिब्रेशन करना है. तो वी वेंट टू वन ऑफ द रेस्टोरेंट एट चेंबू. तो वहाँ पे कहीं लगे लंच वंच किया. बट व्हाइल हैविंग द लंच सर ने मुझे पहले पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम, मुझे करना क्या लाइफ में, क्या चाहिए करके. चलो ये तो प्रोफेशन तूने चूज किया एज अ पार्ट टाइम, अगर दैट इज ओके, बट व्हाट इज योर ड्रीम. तो माय फर्स्ट ड्रीम वाज माय कार. मेरा पहले से मेरा बहुत इच्छा होती थी, मतलब कि आई शुड हैव वन कार. मतलब सपने में मुझे कार हमेशा देखती थी. तो बोले ठीक है कार लेना, नो प्रॉब्लम, विच कार. बोले सर वैसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं. बोले यू हैव टू थिंक, मुझे कौन सी कार लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, कौन से महीने में लेनी है. ठीक है बाइक लोग मैंने बोल दिया ठीक है. वो जो मंथ था दैट वाज वी वर सिटिंग एट इन द मंथ ऑफ मार्च. तो मैंने बोला नहीं जुलाई तक मुझे लेना है, 4-5 महीने में लेना है, ऐसा बाइक लोग बोलते. एंड सर ने वही पकड़ लिया, ओके 4-5 महीने में जुलाई में लेना, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट अ कार. बोले सर ऐसी कैसी कार मिल जाएगी, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं कर दूंगा करके. एंड सर ने फिर वहाँ पे प्लानिंग करना चालू कर दिया कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, यू जस्ट राइट डाउन द नेम्स, किसको किसको मिलना है, विल डू द ज्वाइन करना, ऑल दिस थिंग. एंड मैं क्या बोलूँ, not July, but in the month of August, I could buy a car on my name, and I was very happy. यार जबरदस्त, मतलब इतना मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था 4-5 महीने के अंदर I can get my car, and we were very happy. जैसे हैप्पी होगा तो इमीडिएटली सर दूसरे तीसरे दिन आगे घर पे आ गए. तो चलो तेरा कार तो हो गया, व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्रीम. बोला नेक्स्ट ड्रीम क्या होगा सर अभी. बोला ना यू हैव टू वर्क ऑन ड्रीम. तो एक बार जब ड्रीम देखेगा देन ओनली वी कैन मतलब ड्रीम को रियलिटी में लेके जा सकते हैं. बट यू शुड फर्स्ट लुक एट द ड्रीम्स, इमेजिन करना चाहिए ड्रीम में. मैंने बोला कि ठीक है, उस टाइम पे आई वाज हैविंग माय 1 BHK फ्लैट. तो आई सेड कि नहीं आई वांट टू मूव इट टू द 2 BHK फ्लैट. तो बोला ठीक है 2 BHK करेंगे, बट उसके पहले विल हैव टू डिसाइड ऑन योर प्रोफेशनल टारगेट आल्सो, प्रोफेशनल ड्रीम्स आल्सो. तो बोला ये प्रोफेशनल ड्रीम क्या होता है. तो बोला सर ने बताया कि ये जो LIC है या तो इंश्योरेंस कंपनी है, तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी में हर एक बंदे का एक ड्रीम होता है कि लाइफ में एक बार तो भी मुझे MDRT बनना है. तो मैं बोला हाँ MDRT मैंने नाम सुना था, बिकॉज मेरे मामा मामी हमेशा बोलते थे कि यार MDRT करके कुछ करना है करके. और उन्होंने 20-22 साल वहाँ पे उस प्रोफेशन में काम किया, बट दे कुड नॉट अचीव द MDRT. बट जब उन्होंने मुझे राजेश सर के पास लेकर गए तभी मुझे उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था कि यू विल बिकम द MDRT. तभी मैंने उसको कनेक्ट करना चालू किया. बोला MDRT क्या है. तो सर ने बताया MDRT क्या होता है करके. ठीक है हम लोग MDRT करेंगे. पर सर ने बताया कि तुझे MDRT एक नहीं करना है, यू हैव टू डू 10 MDRTs. बोले 10 MDRT. बोले एक MDRT के लिए कितना टारगेट है. बोले इतना टारगेट है. तो 10 कभी करूंगा. So years you will have to decide whether you can do it in 10 years, you can do it in 15 years, you can do it in 5 years. It's up to you. जितने जल्दी करेगा उतना तुझे फायदा होगा. Then we said no problem, we'll do the MDRT. And उस साल हमने बहुत अच्छा काम किया. And in the first year itself, we become the MDRT. But MDRT बनना भी इतना easy नहीं था सर. मुझे आज भी याद है वो दिसंबर का महीना था. We went to one of my clients and we had presented this retire and enjoy. क्योंकि उस साल तो हमने सिर्फ रिटायर एंजॉय के ऊपर ही काम किया. रिटायर एंजॉय प्रेजेंट किया उसको एंड दैट प्रीमियम वाज ऑलमोस्ट अराउंड 5 लाख रुपीस. एंड मुझे MDRT के लिए प्रीमियम चाहिए था, मुझे ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीस के आसपास चाहिए था. एंड वो क्लाइंट को प्लान बहुत अच्छी तरह से पसंद में आ गया. ही सेड ओके वी विल गो अहेड. तो मेरा काम तो आसान हो गया. चलो 7 लाख में से 5 लाख तो हो ही गया, सिर्फ 2 ही लाख करना है. उन्होंने चेक वगैरह सब कुछ दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया एंड वी केम बैक टू आवर प्लेस. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट क्लाइंट कि होल्ड द चेक मत अभी मत डालना करके. मतलब भाई व्हाट हैपेंड सर. बोले नहीं वी आर रीथिंकिंग ऑन दिस प्रपोजल. बोले ठीक है मुझे 2-3 दिन देना, 2-3 दिन में बताता हूँ. बोले ठीक है. 2-3 दिन करते करते हफ्ता चला गया, उस क्लाइंट का फोन नहीं आया. तो मैं डरना चालू हो गया. बोला क्या हो रहा है. तो अगेन आई कॉल हिम. बोले क्या हुआ करके. नहीं सर कि नहीं हमारा माइंड चेंज हो गया करके. नाउ वी आर थिंकिंग फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. तो वहाँ पे हम लोग को नया घर लेना है, तो हम लोग वहाँ पे पैसा लगाएंगे, तो अभी हम लोग नहीं करेंगे करके. तो उनको काफी मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, बट वी कुड नॉट सक्सीड. एंड फाइनली हम लोग
वो प्रीमियम हाथ से चला गया। तो मैं रोते रोते सर के पास आ गया, बोला सर ये क्या हो गया, अब 7 लाख में करूंगा कैसे करके? तो नो प्रॉब्लम, 7 लाख भी हो सकता है करके, यू जस्ट बिलीव ऑन यूर सेल्फ। तो फिर से हम लोग प्लानिंग पे बैठ गए एंड आई थिंक मुझे याद है 15 या 17 तारीख 15th और 17th ऑफ डिसम्बर वी वर लेफ्ट विथ ओनली 13 to 15 days एंड हम लोगों ने फिर से प्लानिंग करना चालू किया कि मुझे छोटा छोटा प्रीमियम लाना है, किसी से 50,000, किसी से 25,000, 40,000, वैसा करके हम लोगों ने प्लानिंग किया एंड फाइनली वी कुड अचीव अवर MDRT ऑन 31st of December। वो साल तो फर्स्ट MDRT हो गया। तो अब जैसे बोलते हैं ना कि वंस MDRT ऑलवेज MDRT, तो वैसा हो गया एंड मैजिक हैपेंस ऑन द फर्स्ट, मतलब नए साल की नई शुरुआत, उसी क्लाइंट का फिर से फोन आ गया ऑन 5th of January एंड ही सेड तू भाई फिर से आ जा मेरे पास करके, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने ठीक है नो प्रॉब्लम। उसके बाद चले गए फिर से एंड ही सेड ओके आई वांट टू गो अहेड विद द सेम प्रपोजल। मुझे बहुत अच्छा लगा वो बाद में, वी रीथॉट दैट प्रपोजल एंड वी वांट टू गो अहेड। अरे सही है, मतलब नए साल की शुरुआत इतनी अच्छी होगी कि इमीडिएटली 5 लाख रुपए का प्रीमियम आ गया एंड वी कुड स्टार्ट अवर ईयर सक्सेसफुली। फिर उसके बाद सिलसिला चालू रहता है कि हर साल हम लोग MDRT बनते गए और हम लोग को लगते लगा कि अरे हम लोग तो मतलब ब्रांच के बादशाह बन गए थे, MDRT बन गए करके, क्योंकि उस टाइम पे MDRT बहुत गिने चुने होते थे ब्रांच। बट सर भी हमारे बहुत चालाक है, तो उन्होंने क्या किया कि बोला भाई ऐसा नहीं होगा करके, विल गो टू अटेंड दिस MDRT डे। तो हम लोग MDRT डे अटेंड करने गए थे, हम लोग पूना में गए। वी वेंट टू पुणे टू अटेंड दिस MDRT डे। और वहां पे जाने के बाद मुझे लगा कि मैं एक चिट्ठी हूँ, कि वहां पे सब दिग्गज लोग आए थे। दिग्गज बोले तो मतलब किसी ने COT की था, किसी ने TOT किया था। एक तो सभी, पहली बात तो सभी लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे, कोई मर्सिडीज लेकर आया था, कोई ऑडी लेकर आया था, कोई BMW लेकर आया था। तो मुझे लगा अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब ब्रांच के अंदर मुझे लगा था MDRT बोले तो मैं तोफू करता, पर ऐसा कुछ भी नहीं। देन दैट टाइम वी रियलाइज कि अरे MDRT कुछ भी नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज लाइन्स कि मुझे MDRT के आगे भी करना है। देन फिर MDRT का डबल MDRT वगैरह किया उन्होंने। Meanwhile, Neha was also there and she also started taking interest. And फिर उसका भी साथ जब जुड़ गया, then मतलब सोने पे सुहागा जैसे बोलते वैसा होना चालू गया। As soon as she joined, तो हमारा डबल का मतलब पहले एक MDRT से डबल हो गया। देन उसके बाद इमीडिएट COT भी हो गया। देन COT, अभी COT की मैं स्टोरी बताता हूँ कि जब COT मेरा फर्स्ट टाइम जो हो गया एंड मतलब दैट डे वी डिसाइडेड कि दैट ईयर कि वी विल डू COT, क्योंकि हम लोग डबल MDRT 2 साल से कंटिन्यूस करते आए। तो बोला डबल तो करे तो COT क्यों नहीं, एंड COT का प्लानिंग चालू किया। करते करते हम लोग दिसंबर मंथ में आ गए और सिर्फ 2 ही MDRT हो चुके थे। दिसंबर में पहले दिन से हम लोग बहुत काम चालू किया एंड काम करते 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 ऑन 19th of December 2018, before that we 17th of December we went for a one marriage, जो फैमिली फंक्शन था हमारा, तो वी वेंट फॉर अ मैरिज एंड वहाँ से हम लोग रिटर्न आ गए 17th को। एंड 2 दिन के बाद माय फादर पास्ड अवे ऑल ऑफ अ सडन एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर अस। बोला आप करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो हमारा सपना था COT का। एंड मुझे एक बात कहनी थी कि मेरे जो फादर है, मतलब हम लोग जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, तो वी आर फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और हमारे मतलब फैमिली में ये बिजनेस का कल्चर है ही नहीं। हमारे बाप दादा ने किसी ने बिजनेस किया नहीं, और मैं ये बिजनेस में उतर चुका था। तो हमेशा मेरे डैडी पूछते थे कि तेरा कैसा चल रहा है करके, तो मेरा अच्छा चल रहा है करके। वो हमेशा पूछते थे, बट फिर मैं जब ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई तो मैं बोला अभी करूँ तो क्या, कुछ नहीं कर सकते करके। और इतना हम लोगों से, मतलब मैं बोला ना जनवरी में नवंबर में जो लोगों से काम किया था, लोगों से कन्विंस करके रखे थे, प्रपोजल कन्विंस करके रखे थे, बट ऐसा कुछ इंसिडेंस होने के बाद मुझे लगा अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देन उसी दिन हम लोगों ने नेक्स्ट डे वी स्पोक टू आवर मेंटर्स, या ऐसा है कि लोगों से मैंने बात किया। पिताजी का भी सपना था कि मेरा बेटे ने कुछ अच्छा काम करना चाहिए, मैंने उनसे भी डिस्कस किया था। he also was aware about this MDRT and COT। तो मैंने सर को बोला कि आई वांट टू डू द COT एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस COT टू माय फादर। देन सर बोले ठीक है, तुझे जो करना है तू कर ले करके, वी आर विद यू। वहां से क्या कलेक्ट करना है क्या नहीं करना है तू जस्ट फोन पे लगा रहे करके एंड हो जाएगा करके। देन आई सेड नो प्रॉब्लम।
तो वो जो बचे हुए जो 13-14 दिन थे ना, दैट वाज अ मिरेकल डे बोलते हैं ना, तो वैसा था। जिन जिन लोगों से मैंने फोन पे बात की, जिन लोगों को मैं मिल पाया, उन सभी लोगों ने मेरे से सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। नॉट अ सिंगल पर्सन सेड नो, नॉट अ सिंगल पर्सन, एवरीबॉडी हैज सेड यस। किसी ने 50 का प्रीमियम दिया, किसी ने 5 लाख का प्रीमियम दिया, व्हाट रेडी, बिकॉज उस टाइम पे मुझे एक महीने में 38 लाख रुपीज का प्रीमियम करने का था। मतलब ये 13-14 दिन में 38 लाख प्रीमियम वाज अ वेरी बिग प्रीमियम फॉर मी, बट ये 38 लाख का प्रीमियम वेरी इजीली आई कुड गेट इट, एंड वी कंप्लीटेड आवर सीओटी। तो मैंने बोला ना, फर्स्ट एनडीआईटी में स्ट्रगल हो गया, तो वैसे फर्स्ट सीओटी में स्ट्रगल हो गया, एंड दिस ईयर वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर टीओटी। तो मुझे लगता है कि ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बोलो तो वी विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव आवर टीओटी दिस ईयर। तो वैसे करके हमारी ये लाइफ जर्नी चलती गई। तो आई विल जस्ट टेल नेहा टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, शी विल टेल समथिंग। वेलकम मैम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड ग्रेट इवनिंग टू एवरीवन। बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे कोई, लेकिन बहुत सारे बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। माई सेल्फ नेहा डोईफोडे, बेटर ऑफ प्रसाद डोईफोडे, उनकी वाइफ हूँ मैं। और ये एजेंसी का फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मेरा जो एजुकेशन है, आई एम एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट। वर्क करती थी बिफोर, मतलब मैरिज में जॉब पे थी। उसके बाद बच्चा होने के बाद 2 साल घर पे, लिटरली पूरा हाउस वाइफ। मतलब यहाँ पे जितने भी लेडीज है उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर एक हाउस वाइफ यहाँ पे आके, मतलब अगर मैंने शायद प्रसन्न ने वो सब फोटो आपको भेजा नहीं है मेरा, लेकिन जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, थैंक्स टू अंजलि मैडम, थैंक्स टू विपिन सर, और थैंक्स टू माय मेंटर मिस्टर काजिम रजा सर, की जिनके ट्रेनिंग के अंडर में हूँ, और आज जो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है आज उनकी वजह से है। तो थैंक्स टू देम ऑल्सो। तो ये जो हाउसवाइफ से यहाँ पे आना और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना हस्बैंड के साथ और उनके साथ खड़ा रहना, तो थैंक्स टू LIC, उनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ। और थैंक्स टू माई मेरा बेटा जो आज 16 इयर्स का है, और उसकी वजह से, उसके साथ की वजह से कि मम्मा बाहर जाओ मैं हूँ करके, क्योंकि 2.5 ईयर्स से उसको पता है कि मम्मी LIC में काम करी है। वो मेरे साथ आता था LIC में बैठता था, और आज वो मुझे पूछ रहा है कि मम्मी टीओटी का कहाँ तक आया है करके। तो थैंक्स टू माय चाइल्ड। तो यहाँ पे जितने भी लेडीज है, जितने भी अगर लेडीज है, तो उनके हस्बैंड को भी आप अपने साथ लेके आ सकते हो। यही मेरा मतलब मैसेज रहेगा लास्ट में, लेकिन मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ इंट्रोडक्शन मेरी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आपने जो डैडी का आपका किस्सा कहा, जो एक उनमें थोड़ा अनसर्टेनिटी थी, तो वो मैं आपसे हमारे बात में का एक टॉपिक शेयर कर देता हूँ। हमारे इंटरव्यू में जब हुआ था फर्स्ट डिस्कशन में, see any family who is a middle class family, and when your son who is earning quite handsome, almost you can say unimaginable figure by his father, and he wants to leave that job and move into a business, that was a big thing, any decision that a parent has to take, and that is where things have changed for you a lot. सर इसका मैं एक छोटा सा बताता हूँ आपको मैं कि मैंने आई क्विट माय जॉब इन 2015, बट उसके मतलब जॉब तो बहुत पहले से छोड़ने का था, मैंने इरादा किया था। मतलब सर तो मेरे पीछे पड़े थे कि यू हैव टू डू द फुल टाइम। मैं ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं मेरा रेजिग्नेशन मेरे बैग में लेके घूम रहा था, बट आई कुड नॉट डेयर टू रिजाइन फ्रॉम माय सर्विसेज बिकॉज आई वाज हैविंग गेटिंग द हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। उस टाइम पे आई वाज अर्निंग अराउंड 17 लाख रुपीस। 17 लाख रुपीस का मेरा पैकेज था, एंड आई वाज हेड ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, तो इतना डेजिग्नेशन भी अच्छा था। आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द ग्रेट कंपनी, इट्स कॉल्ड जॉनी वॉकर। सबके मतलब सभी जेंट्स लोगों का बहुत फेवरेट है जॉनी वॉकर। तो उस कंपनी में काम कर रहा था, लीडिंग पोजीशन में था, एंड गेटिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। बट समहाउ मुझे लग रहा था कि मुझे आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस। ठीक है, ये तो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, बट उसी में मुझे बहुत कुछ करने का था, बिकॉज वी वर हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट बेस, दैट टू ऑल क्रीम क्लाइंट्स। मेरे एक भी क्लाइंट ऐसा ये नहीं दिखा, ऑल सब क्लाइंट्स सब बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा काम करने का। तो जब मैंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द सर्विसेज, सिर्फ मुझे पता था क्योंकि मैंने रिजाइन किया था, नेहा को पता था, एंड माय मेंटर्स अंजलि राजा एंड विपिन राजा, उनको ही पता, बाकी किसी को नहीं पता था कि मैंने जॉब छोड़ा है करके। मेरे पेरेंट्स को मैंने जब बात बताई तो ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने बात बताई। 1 साल तक मैंने उनसे ये बात छुपा के रखी कि मैंने जॉब छोड़ा है करके।
बिकॉज ऑफ द मतलब उनको शॉक लग जाएगा कि अरे प्रसाद ने इतना बड़ा जॉब क्यों छोड़ दिया करके। तो मतलब उनको भी मतलब दे ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग, बिकॉज पहले क्या होता था, जब भी कुछ फंक्शन फैमिली फंक्शन होता था मैं हमेशा एक्सक्यूज देता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, आज मंथ एंड है, आज ये है ईयर एंड है, ऐसा कुछ ना कुछ बहाने देता। बहाने नहीं, मतलब एक्चुअली मुझे काम उतना होता था, डे इन डे आउट मैं फोन पे लगा रहा। बट जैसे मैंने जॉब छोड़ दिया तो आई कुड हैव अटेंड ऑल दिस, मतलब किसी का मतलब किसी का शादी होगा, बच्चे का नेमिंग सेरेमनी बोलो, किसी का फ्यूनरल बोलो, सब जगह प्रसाद डॉयफोर्ड दिखना चालू हो गया। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला, पूछ लिया एक दिन मेरे मदर ने, अरे बेटा तू आजकल कैसे दिखता है बार बार, पहले तो दिखता नहीं था किसी को, आजकल तू सभी फंक्शन अटेंड करता है करके, तूने जॉब तो नहीं छोड़ा ना? मैंने नहीं, जॉब नहीं छोड़ा करके। मैं स्लोली ग्रेजुअली फिर थोड़ा थोड़ा उसको हिंट देना चालू किया, एंड वन फाइन डे फिर उन दोनों को बिठाया वहाँ पे, एंड फिर बताया कि आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट द जॉब 1 year बैक, बट मैंने आपको बताया नहीं बिकॉज आपको शॉक लगे करके, बट अभी मेरा बिजनेस काफी अच्छी तरह से चलता है। Sure, that's great. Leaving a 18 lakh job and shifting to a business, this is something a big taker. Because बहुत बार लोग फेंस पे बैठे रहते हैं, क्या करूं, 20,000 का 15,000 का जॉब है, छोड़ के फुल टाइम आऊं नहीं आऊं, but unless and until you dedicate yourself and jump yourself again, it's not only leaving the job. हम आगे बात करेंगे, आप जो 14 घंटा जॉब में काम कर रहे थे, वही 14 घंटा आप खुद को आप यहाँ आपने रिप्लेस कर दिया. So that was something big. We'll talk on that. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.